তাক লৈ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু টাইম এইটে কেৱল ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা নহয়, আমাৰ সাংবাদিক গৈ উপস্থিত হৈছে সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত, য'ত তেওঁলোকক 4 দিন ধৰি পণবন্দী কৰি থোৱা হৈছিল। টাইম এইটৰ মেনেজিং এডিটৰ উৎপল কান্ত আজি গৈ উপস্থিত হৈছে হাথৰাছত, আৰু উৎপল কান্তে পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিছে, য'ত পৰিয়ালটোৱে কেইবাটাও বিস্ফোৰক কথা উল্লেখ কৰিছে। আমি কিছু সময় পিছতে আপোনালোকক সেই বিশেষ খবৰ দেখুৱাম, কিন্তু প্ৰথমতে ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো। হাথৰাছৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ নতুন নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে। 4 দিন ধৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালক পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল, আৰু হাথৰাছৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ কাষত গৈ উপস্থিত হৈছে টাইম এইট। টাইম এইটে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিলে, আৰু ধৰ্ষিতাৰ মাতৃয়ে কেইবাটাও কথা, বিস্ফোৰক কথা উল্লেখ কৰিছে। গ্ৰাউণ্ড জিৰোত টাইম এইট গৈ উপস্থিত হৈছে। আমি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত সেয়া আমি আপোনালোকক যি সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলে, সাক্ষাৎকাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু টাইম এইটৰ আগত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বিগত 4 দিন ধৰি তেওঁলোকক পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছিলে, গৃহবন্দী এক প্ৰকাৰৰ কৰি ৰখা হৈছিল, আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকক খাদ্য পৰ্যন্ত যোগান ধৰা হোৱা নাছিলে। চৰকাৰ প্ৰশাসনটো বাদেই দিয়ক, গাঁৱৰ বাকী লোকেও তেওঁলোকক খাদ্য যোগান ধৰা নাছিলে। তেওঁলোক লঘোণে থাকিবলগীয়া হৈছে, আৰু সকলো কথা তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে। 200 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ এগৰাকী বিধায়ক আজি আহিছে, আৰু এই বিধায়কগৰাকীয়ে কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে খাদ্য লৈ আহিছে। আজি অৱশ্যে নেতা অহাৰ পিছত কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকক খাদ্য দিয়া হৈছে, কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, ৰাজনৈতিক নেতা যেতিয়া যায় তাত এই বিষয়বিলাকক লৈ আলোচনা হয়, কিন্তু অন্যথা ন্যায় প্ৰদান কৰা নহয় নেকি? এই যুৱতীগৰাকীক ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ ধৰ্ষণৰ সেই ব্যক্তিকেইগৰাকী, সেই পাখণ্ডকেইটাই ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰিছিলে, পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে মৃতদেহ জ্বলাই দিছিলে। তাক লৈ পৰিয়ালটো আজিও ক্ষুণ্ণ। তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ স্মৃতি বা তেওঁলোকক প্ৰমাণ দিয়া নহ'ল, তেওঁলোকক চাবলৈ দিয়া নহ'ল। এই সকলো কথা হাথৰাছৰ সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে আজি টাইম এইটৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছে। আপোনালোকে নিজে শুনিলে গম পাব যে কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা। কেৱল যোগী চৰকাৰেই নহয়, যিখন সমাজত আচলতে বসবাস কৰি থকা হৈছে, সেই সমাজৰ একাংশ লোকৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। এতিয়া হয়তো বিভিন্নজন গৈছে, কংগ্ৰেছ গৈছে, সমাজবাদী পাৰ্টি গৈছে, অন্যান্য গৈছে, কিন্তু অন্তিম পৰ্যায়ত এই যুৱতীগৰাকীয়ে কৈ থৈ গৈছিলে যে, ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে কৈ থৈ গৈছিলে যে ফাঁচি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, ফাঁচি দিয়াৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ টাইম এইটৰ মেনেজিং এডিটৰ উৎপল কান্তে আপোনালোকে দেখিছে কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে তেওঁ উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰিছে, আৰু আপোনালোকে নিজেই শুনক কিমান দুখত তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হৈছে। এই ঘৰটো এক প্ৰকাৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিলে সমগ্ৰ দেশৰ। এই ঘৰটোলৈ কাকো যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। সংবাদ মাধ্যম, ৰাজনৈতিক নেতা, আৰু আজি এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতা আহিছে, বিভিন্নজনে খাদ্য যোগান ধৰিছে, ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো গৈছে, কিন্তু বিগত 3-4 দিন ধৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন হ'ল সেয়া অতিকৈ ভয়ংকৰ কথা। প্ৰথমতে ধৰ্ষণ, তাৰপিছত নিৰ্যাতন। এই মুহূৰ্তত হাথৰাছৰ পৰা সেই এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। हम बुलगड़ी गांव में हैं, हाथरस के, और हम पीड़ित परिवार के घर पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है, माँ है, उनके भाई हैं, ये लोग 4 दिनों से भूखे हैं, और 4 दिनों के बाद आज उन्हें खाना दिया जा रहा है। इस गांव में इतनी भी सहिष्णुता नहीं बची थी कि उन्हें खाने के लिए पूछ सकते। 4 दिनों से पूरा परिवार भूखा पड़ा रहा। आज 4 दिनों के बाद आप देख सकते हैं उन्हें खाना परोसा जा रहा है। यह है इस गांव की सहिष्णुता, यह है इस गांव की सहृदयता। आप देखिए कितना निष्ठुर है समाज। जो बच्ची थी वो तुलसी की पूजा करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। वही करती रोज शाम को करना उसको, दोपहर को जब नहा धो के जब भी करती। ईश्वर में इतनी आस्था थी, और उसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ। 9 देवी की व्रत रहती थी, पूरे 9 दिन तक अन्न नहीं खाती थी। लोगों को जोड़ा पर सारे घर का काम करने, और पूरा काम भी नहीं करती तो भूखा ना लगा तो मम्मी मेरे पेट बहुत सा है, वो ना भूखा लगा। जब वो अस्पताल में थी उस वक्त उसने कुछ आखिरी इच्छा, कुछ मन की बात बताई। उसने कुछ बोला कि इन्हें किस तरह, कैसे उसे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलना चाहिए, बताइए क्या बोला उन्होंने? इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। बच्ची ने आखिरी दिनों में उन आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। नाम भी बताए, नाम बताया और फांसी की मांग की।
क्या क्या कैसे किया सब बता कर गई है। कुछ बोला नहीं। उसने जिस व्यवस्था ने उसके साथ इतना धोखा किया, जवान काट दी, बोलती थी पर ऐसे हल्का बोल पाती थी, हड्डी टूट रही है, हड्डी टूट गई, जवान काट दिया। शासन प्रशासन बहुत जल्दी कर रहा था। अब संशय तो बढ़ जाता है कि मुंह क्यों नहीं दिखाया। अब ये कैसे मान ले कि कौन लड़की थी जिसको जलाया गया, संशय तो है। यही जिद है हम सब परिवार की कि मानो कैद पकड़े, एक बार दिखा देता, उसका चेहरा तक नहीं दिखाया। लेकिन दिखाया क्यों नहीं? यही तो चेहरा तक नहीं दिखाया भाई, आप बताइए। कहाँ स्वादिष्ट आप नहीं, बट कुछ तो आप जैसे क्या है, कुछ तो आप लोगों के दिमाग में होगा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? जानने के लिए मैडम के बाद कपड़े लत्ते कुछ तो मिलते हैं, कुछ दिया इन्होंने, कुछ सबूत दिया। कुछ पैर की गई है, कुछ भी पैर की कुछ भी वापस नहीं किया। कैसे मान लो, आज तक आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं। बेटी से जब आपकी बच्ची से जब बात होती होगी लास्ट आखिरी दिनों में, तो आपको एक चीज कभी लगा, उसे कभी इस बात की उम्मीद थी कि शायद उसकी जान बच जाएगी, कुछ अच्छा इलाज होगा? क्या बोलती थी? मंगाई लीजिए, भाभी तो बोल दी है मेरे जो पैर ना उठाता और क्या कहते मेरी मम्मी मानसिक करने का मेरी यहाँ में चिंता मत करो, मेरी तेल मंगा यहाँ तो ले चलो, ले चलो। हॉस्पिटल में कह रही थी कि मुझे मार देंगे यहाँ पर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में कैसे बोल पा रही थी। हम ये कह रहे हैं ठीक है तो जल्दी ठीक हो जाता। चुपचाप करके छुप रहे, चिंता मत। अगर उसे थोड़ा सा इलाज अच्छा मिला होता तो जान बच गई होती। हमारे हाथ होती। तो ये जो नेता आज जो मुझे गुस्सा किस बात से सबसे ज्यादा है, आप खुद विधायक हैं, बुरा मत पाएंगे, आज जो सारे नेता आज जो आकर के जो मातम मना रहे हैं, उस वक्त किसी ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, किसी ने एक फोन कर दिया होता, किसी ने एक ने आवाज उठा दी होती तो एक अच्छा इलाज। आप विधायक आप बताएं, किसी एक फोन की जरूरत होती है, एक फोन आप अस्पताल के डायरेक्टर को फोन करें, सुपरिटेंडेंट को फोन करें तो उसकी जान बच गई होती। इस बेशर्मी, इस जलालत के लिए मैंने कहा ना, सरकार भी और नेता भी जिम्मेवार है, सिस्टम, पूरा सिस्टम जिम्मेवार है, पूरा सिस्टम। आज देखिए, मैंने कहा पूरा सिस्टम, चाहे मैं क्यों ना, नेता क्यों ना हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, सब इस सिस्टम के जिम्मेवार हैं। उस बेटी के सिस्टम ने भी हत्या की है, इस बेटी की व्यवस्था ने हत्या की है, व्यवस्था ने हत्या की है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी बहन को हमारे पास तक नहीं आने दिया, उसके वास्ते हमें डेड बॉडी फूंक दी। हमारे पास तो आनी चाहिए थी। अलीगढ़ से रेफर करा गया तो यहाँ से इसको कोई कागज नहीं थे, और जो बोला गया था कि एम्स के लिए और लेके गए सफदरजंग में, वहाँ पर डाटा भी था उन लोगों जो पुलिस वाले थे, एमएलसी पुलिस वाले यहाँ से एमएलसी लेकर सबको खाना खिलवाओ। परिवार के घर पर है, आप देख सकते हैं कि वो पीड़ित परिवार है, माँ है, उनके भाई हैं, ये लोग 4 दिनों से भूखे हैं और 4 दिनों के बाद आज उन्हें खाना